محمد خلیل لون صاحب کار چھو تُہۍ یور آمٕتۍ 1970 کتہِ پٮ۪ٹھ تاوبٹی پہ پاکستان پہ پٲکِستان یہ بٹوارہ گو ہندوستان اور پاکستان اس کڑ برو برو ہندوستان آو پت پت کٲشِر اردو پٲٹھۍ اگر وَنان اردو پٲٹھۍ ون ہم کو میچن تو جو تعلیم پورمت نہ نہ کانٛہہ پَتہٕ چٲنۍ تجرُبہٕ چھُ سانہِ تعلیٖم کھۄتہٕ ہَتھ کھٔنٛڈ بوٚڑ 1947 1947 جب بٹوارہ ہو گیا ہندوستان اور پاکستان تم سات پہ ونکن یتھ دمس تم یہ بکتور بکتور 70 تام کۭتیٛاہ چوٗلہٕ چھُو تُہۍ سٲری کۭتیٛاہ چوٗلہٕ چھُو اچھا تمن دو آج تمن دو 7 چوٗلہٕ کیا آج 15 چوٗلہٕ گٔمٕتۍ 70 شُراہ بیٚیہِ تہِ چھُ کتھ تام جایہِ ریفیوٗجی بستی کلیل سائڈ اوٗڑی نہٕ گُریس منٛز کلیل گریس گُریس چھُو تُہۍ کیٛاہ تِلیرس منٛز کٲنٛسہِ مےٚ ؤنۍتو اکھ کتھ کیٛاہ پرٛابلِم کیٛاہ کیٛاہ چھِ تۄہہِ پرابلم کیا کیا شُرۍ پٔرِتھ چھِ درسہٕ سٲنۍ شُرۍ پٔرِتھ تیٖژ تعلیٖم کٔرِتھ مٔزوٗرۍ کٔرِتھ بکتور گام کے بکتور کے گرن میں اکھ اکھ زٕ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ گھر ٲسۍ آسان تِمن امہِ بعد گوٚو پتہٕ گٔے کٲم 1967 منٛز ٲس مرکزن منٛز تہٕ کانگریس گورمنٹ کشمیٖرس منٛز ٲس کانگریس گورمنٹ 1965 منٛز دیُت پتہٕ اَسہِ یہِ کاہ مرد زٔمیٖن بسنہٕ خٲطرٕ 2.5 کِلو گرا منٛز ٲسۍ کھٔتۍ یور تِمن دۄہ وزیٖر مملکت آ دِتِکھ اَسہِ کاہ مرد 1965 پٮ۪ٹھ یتھ دمس تامتھ یہ گوٚو نہٕ ناوس کینٛہہ اچھا کہیں چھُ ناو میں وہ تحصیلدار ایک دن آگے ہمارے پاس تحصیلدار صاحب کہا آپ نے کیوں مکان بنائے ہوا یہ 3 سال کی بات ہے میں کیا دپن یہ تمہارے نام پر زمین نہیں ہے مکان کیوں بنائیے ایسا کرو سر کو دیتے ہیں میں کاغذ جب ہم کو جانا پڑتا ہے بارامولہ سے ابھی بھانڈی کو جاتے ڈھونڈنا پڑتا ہے ووٹ کو اور بچوں کو کاغذ بنانے کے لیے بچوں کو دو مسائل آج آپ کو نہیں ملتی ہے آج نہیں ہے نا وہی ہم کو جب تک وہ نہیں ہوگا مجھے بتائیں ایک منٹ سوچ آپ پڑھے لکھے ہیں آپ بتا دیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو پرابلم کیا وہ ایک تو آپ کی زمین آپ کے نام نہیں ہو رہی ہے جناب لڑکس میں ہمیں مزدوری کرتے انا رپیہ دہ جناب آپ رکو ایک منٹ اسے بات کرنے میں سر ہمارے یہاں پہ جو ہمیں جو زمین ان کے ہمیں دی گئی تھی وہ ابھی ہمارے نام نہیں ہے ایک ہوا یہ مسئلہ دوسرا آگے بتاؤ ہمیں سر گورنمنٹ جابس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پریویلیج نہیں ملتا ہے سر بالکل سر ہم بہت غریب ہیں ہم مزدوری کر کے بہت سارے ہارڈ بھی چیلنج پیش کوئی پیکیج ملا جو کچھ یہ مجھے کہنا تھا جموں میں جو رفوجی ہے نا ان کو 5 لاکھ ملے یہی تو ہمیں کچھ نہیں ملا ہمیں 5 پیسے بھی نہیں ملے ہم کو آئی وے کیس نہیں دیا جناب بکرے عرض ووٹ کے ساتھ تھی یوان کچھ تے پارلیمنٹ سے ووٹ دیوان پیسہ دے گا مشت گوشت دے گا وہ گوشت بھی نہیں دیتا ہے نوچتا ہے بھی نہیں دیتا ادھر سے ہی نوچتا ہے نمس گئی جناب نمس بچس گئی میں باوری یہ سوچ سر ہمیں آپ دیکھیں او ونڈرفل ماسٹر ابھی بیکار ہو آپ تو ایک منٹ جو بھی ہمارے جموں کشمیر کے ساتھی باہر کے ساتھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میری اتنی گزارش ہے جو ایسا میں نے بھی پہلے بھی کہا گریز کی بختور بستی اور اس بستی کا نام ریفیوجی بستی ہے 47 میں جب پارٹیشن ہوا حالات نامساعد تھے تو یہ سارے لوگ باغ کے اس سرحد کے اس پار سے یہاں پر آ گئے سیٹل ہوئے 60-70 گھر تلیل میں ہیں لگ بھگ 100 گھروں سے اوپر ان کی آبادی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے انہیں 1965 میں 11 مرلہ زمین دی گئی تھی لیکن آج تک وہ زمین ان کے نام نہیں ہوئی اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 سال پہلے جیسا ابھی اس بستی نے کہا سارے آپ کے سامنے ہیں کہ انہیں 3 سال پہلے محکمہ مال کے اہلکاروں نے یہ تک کہہ دیا کہ
कि जब ये बस्ती आपके नाम है ही नहीं तो आप मकान कैसे बना रहे हैं। मस्जिद हम बनती थी जनाब, बोला मस्जिद मत बनाओ, बाद में हमने जबरदस्त देखिए मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए भी इन्हें मना किया कि आप रिफ्यूजी हैं, सरकारी ज़मीन पर नहीं बना सकते। मेरी सरकार से गुजारिश है, अभी आपने पूरे कंट्री में एक नरेटिव चलाया कि हमने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, पीओ के रिफ्यूजियों को सिटीजनशिप दे दी, पैकेज दे दिए, वोट का अधिकार दे दिया। लेकिन हमारा आज अमित शाह जी से सवाल है, मोदी जी से सवाल है, क्या गुरेज के रिफ्यूजी, बख्तौर के रिफ्यूजी, तलेल के रिफ्यूजी, ऊडी में रहने वाले रिफ्यूजी, क्या आप भी रिफ्यूजी हैं? जब आपने पैकेज दिया, अच्छी बात है, आपने जम्मू के रिफ्यूजी का मसला हल कर दिया, तो क्या ये लोग इस सरकार की नज़रों से ओझल हैं? क्या इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं? मैंने इसीलिए पहले भी कहा कि सरहदी इलाकों में काफ़ी लोग शेलिंग के बाद 89 में सरहद पार करके उस पार चले गए, क्योंकि सरहद पर तो गोलाबारी होती थी। उनको भी वापस आने का हक है, उनको भी वापस आने दिया जाए। लिहाजा कश्मीर की बात सब करते हैं, जम्मू की बात सब करते हैं, लद्दाख की बात सब करते हैं, लेकिन गुरेज, करना, उड़ी, रजौरी, पुंछ, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले जियाले, बहादुर, ईमानदार, मुखलिस, सिंसियर, गरीब लोग हैं, इनकी बात कोई नहीं करता। आज हमें उम्मीद है कि हमारी ये बात मरकजी सरकार तक पहुँचेगी। हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाएंगे। हमारी इतनी गुजारिश है कि जो ये लगभग 100-125 फैमिलियाँ जो आज भी 47 से आज तक रिफ्यूजी हैं, आपने 65 के रिफ्यूजियों को सिटीजनशिप दे दी, आपने उसके बाद जो आए उनको आपने ज़मीन दे दी, पैकेज दिए, 5-5 लाख का पैकेज दिया, लेकिन बख्तूर के रिफ्यूजी के बारे में सरकार के पास क्या पॉलिसी है हम जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इनके मसले हल होंगे। इसलिए लाइव वीडियो का मकसद इनके मामले को हाईलाइट करने से ज़्यादा लोगों को बताना है, कश्मीर के लोगों को बताना है, हिंदुस्तान के लोगों को बताना है, बाकी स्टेट के लोगों को बताना है कि इन रिफ्यूजियों का भी कोई हल निकालना पड़ेगा। और इनकी बात कोई करता ही नहीं। और ईमानदारी है कि शायद किसी को मालूम भी नहीं कि यहाँ रिफ्यूजी भी बसते हैं। यहाँ सिर्फ पता था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, पीओ के रिफ्यूजी, लेकिन जो बेचारे यहाँ की धरती के मालिक हैं वो अपने घरों में भी आज रिफ्यूजियों की तरह रहते हैं। और उम्मीद है कि इनकी बात सुनी जाएगी इंशाल्लाह। और उससे बड़ी बात, ये बच्चा एक यहाँ पर है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस लोन। इन्होंने केमिस्ट्री में MSc किया है और बेकार है, LOC पर रहने वाला वो जवान। जरा ये पहाड़ आप दिखा दें, पहाड़ इस तरफ जंगल दिखाएं, जंगल दिखा दें, ये बैंकर दिखाएं, जो बैंकर है इधर दिखाएं। ये बैंकर तो आपने देख लिया, इस बैंकर में जब LOC की शेलिंग होती है तो इस बैंकर में बस्ती के लोग छुपते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, LOC पर रहने वाला ये जवान जिसने MSc किया, इसका MSc मेरे 5 बार PhD करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पहाड़ों का शहजादा है, ये गुपकार का शहजादा नहीं है। इस पहाड़ों के शहजादे के लिए अगर नौकरी नहीं है तो फिर मुझे बताइए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, फिर आम जवान के लिए हमारे पास रोज़गार के क्या मौके हैं। कल नई सरकार बनेगी, उमर साहब ने वैसे भी कहा है कि वो 1 लाख रोज़गार दे देंगे, तो क्या उन 1 लाख रोज़गार में बख्तूर के MSc किए हुए जवान की किस्मत में कुछ लिखा है क्या? हम इंशाल्लाह आपके लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, और हर दिन लड़ेंगे, हर माह लड़ेंगे। जनाब एक बात है, हाँ बताइए। जनाब ये बैंकर भी नहीं देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से बैंकर नहीं देते थे हमको। बोलते थे रफूजी ने, मैंने तहसीलदार साहब ADM को मैंने बोला, फिर तू तेरा चौकीदार कहाँ है, तेरे मेंबर कहाँ है, तेरे लंबरदार कहाँ है, तेरे को जब लिस्ट नहीं दिया, लेकिन बगदौर गाँव में झगड़ा हो गया। फिर मैंने पकड़ के लाके ये बैंकर दिया है। क्यों? हमने वो बनाए थे, ऊपर वो दूसरे कच्चे बैंकर। हमको पानी भी नहीं है, पानी विंटर में नहीं आता है। हम बोलते हैं सबको, बोलते हैं दे देंगे, पानी भी नहीं होता विंटर में, अभी तो आता है। जनाब आपने देख लिया कि बैंकर जो कि बुनियादी ये भी नहीं देते थे हमको। इनको सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि ये रिफ्यूजी हैं। जैसा आपका नाम क्या है? नसीर अहमद लोन। जैसे नसीर साहब ने यहाँ पर कह दिया कि उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने झगड़ा करके ये बैंकर लिया। तो हमारी इतनी गुजारिश है सरकार से, इन लोगों को जीने दिया जाए। और जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बख्तूर इधर नहीं ऐलान किया था दावर आके कि हम आपको बांडी पोरा में 5-5 मरले 10-10 मरले जमीन देंगे। मोदी जी के वादे का इंतजार है। हम मोदी जी से कहेंगे कि आपको यहाँ से वोट भी अच्छा मिला गुरेज से। फकीर मोहम्मद खान साहब आप देख रहे थे, एक मिनट, एक और अभी भी बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने उनको वोट भी दिया। तो उस चीज़ का लिहाज करके कम से कम अगर कुछ नहीं तो इन्हें 5-5 मरला ज़मीन आप बांडी पोरा में बाकी वैली में दे दें, क्योंकि यहाँ 10-12 फुट बर्फ़ पड़ती है। ये लोग जाएँ कहाँ? अगर कोई माँ या बेटी
मतलब दर्द साहब में मुब्तला हो तो उसका क्या होगा, सर्दियों में इन लोगों का क्या होगा। ये लोग सिर्फ फौज के रहम करम से जिंदा हैं और मौसम पर जिंदा हैं। लिहाजा उम्मीद है कि इन लोगों की जो बात है वो सुनी जाएगी और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बल्ले में मैं खड़ा हूँ। चावल से हमारे क्या हो जाएगा वो मैंने कर दिया। बहुत अच्छा मैं शुगर का मजदूर करी डबल एमए डबल ये करे तुम घर का सुच इथे करना ने तुम माथो बोझ डबल एमए डबल पीजी करे जनाब आप तो सारे देख रहे हैं डबल पीजी करके इसको मैंने पढ़ा है। आपका नाम क्या है? डबल पीजी आपने किस चीज में किया है? लिहाजा मेरे श्रीनगर वालों, जम्मू वालों, कश्मीर वालों, इस माँ की आंसू तो देख लो। एलजी साहब, मोदी जी, अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, कुछ नहीं। इस बहन के आंसू तो देख लीजिए। आपको लगता था कि वो गुज्जर लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, इन्हें क्या पता। ये लड़का एमएससी जालजी किया हुआ है और बेकार है। ये शर्म की बात है। आप कहते हैं कि इनकलाब आए, हमने इतने रोजगार खड़े किए, कहाँ आपका रोजगार है? जवानों के लिए रोजगार दे दीजिए, नहीं तो जवान आपके जो मालूम की है उनके दरवाजे खटखटा के आपकी नींदें हराम करेंगे। इंशाल्लाह इंसाफ होगा, हम आपके साथ करें। और इनके 2 बेटे पीजी किए हुए हैं, लिहाजा ये अनपढ़ लोग नहीं हैं। आप ये नहीं देखें इनके पास प्लास्टिक के जूते हैं। ये लोग पहाड़ों में पलने वाले आर्मी की मजदूरी करके इनको मजदूरी करके गुजारा करते हैं, उसमें भी लेबर डिपार्टमेंट इनके साथ गड़बड़ कर रहा है। शुक्रिया, थैंक यू, कोई बात नहीं। ये बहुत